topic was democracy of India. So first of all, we all know that democracy is for the people, of the people, and by the people. And it is well known and widely known by everyone. Now, what makes India so special when it comes to democracy? Now, democracy for India, it's not that India is the one that has originated democracy. India is one of the country that has made democracy possible for such a large scale population, where there are people of they follow different culture, different religion. So we all live together as one. That's what makes India, India. So as said by our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, that India is not just the biggest democracy in the world, it is the mother of democracy. So इससे आता है कि हमारी देश में there is coexistence of people of different kinds and also harmony. And now there is one drawback in democracy and also a plus point. It is that everyone can vote. Now you all might question, why is that a negative point? When you say everyone can vote, it includes people who are well aware of the present government, of what policies they have introduced, what schemes they are going through, or what they are bringing a change in a society, and also the people who are unaware of what's happening in and around their own country. So we all know there is like 4 pillars of democracy, which is legislative, executive, there's also judiciary, and media being the 4th pillar. As we all know, the media nowadays has been quoted as Godi media, because instead of it showing what's actually happening in and around the country, like for example, let me quote the Manipur violence, which many say that there are 2 sides of one coin. We might say that our Prime Minister is not visiting in Manipur, as even though it's part of India, but others say it's because there is a political clash between Myanmar and India, so he's not able to voice it. But now what's the reason that he's not visiting Ladakh? So that is again a big question. Now in conclusion, I would like to quote that हिंद देश के निवासी हम सब हैं, और रंग रूप वेश भाषा चाहे अलग भी हो, लेकिन हम सब एक हैं. So that's what makes India India, and that's how I would like to conclude today's session. माइनॉरिटीज़ को ऑब्वियसली रिजर्वेशन मिल चुका है, तो अब मैं ये कोड को एक्सटेंड करना चाहती हूँ कि माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन मिल चुका है. तो डेमोक्रेसी तो यही होता है ना, गवर्नमेंट फॉर बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल. तो जब ये राइट ही नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कैसी है? इंडिया में तो बहुत डेमोक्रेसी है, बिकॉज वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम. हमारे पास सिंगल पार्टी नहीं है, हमारे पास मल्टी पार्टी सिस्टम है. वी ऑल हैव राइट टू चूज़, मतलब कि कोई भी किसी भी पार्टी को चूज़ कर सकता है. यही डेमोक्रेसी है, अपनी गवर्नमेंट ला सकता है. तो डेमोक्रेसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि मतलब जो भी तुम जिसे भी चूज़ करना चाहते हो तुम उसे चूज़ कर सकते हो, और डाइवर्सिटी वाले लोगों को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी है, एक ही बार बार वो इलेक्ट होती रहेगी, ऐसा नहीं है. वो हम दूसरे भी इलेक्ट कर सकते हैं, और मतलब कि राइट टू चूज़ है, मल्टी पार्टी और रिप्रेजेंटेशन है बहुत, मतलब अलग अलग सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन बराबर होना चाहिए. तो डेमोक्रेसी यही हमें सिखाता है. और मंडल कमीशन भी बनाया गया था ताकि ये ध्यान रखा जाए, रिजर्वेशन किया था माइनॉरिटीज़ के लिए अप टू 27%. तो ये डेमोक्रेसी का तो मीनिंग यही है, पावर ऑफ पीपल. जो लोग जिन्हें चुनते हैं वो चाहते हैं कि वो उनके लिए वर्क करें. और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना डेमोक्रेसी का, वो ये है कि मतलब कि करप्शन बहुत ज़्यादा होता है. और उससे भी बड़ी बात है कि हम उन्हें चूज़ करते हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते भी नहीं कि वो हमारे लिए सर्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. और थर्ड जो इसका वो है कि मतलब कोई भी जो आता है वो ज़्यादा टाइम, अगर वो अच्छा भी होगा तो वो ज़्यादा टाइम के लिए सर्व नहीं कर सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोग फिर नई पार्टी को इलेक्ट कर लेंगे. तो ये सभी बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ है उसके अंदर. और डेमोक्रेसी जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है. तो जो डेमो है वो उसका मतलब होता है पीपल, और जो क्रेटोस होता है उसका मतलब होता है पावर. तो मतलब जो है पावर है ना वो पीपल के हाथ में होती है. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमें राइट टू चूज़, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, एवरीथिंग, बहुत सी चीज़ें देते हैं. तो मैं यही कहूँगी डेमोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट या इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एंड इंडिया ऑलरेडी हैव मच डेमोक्रेसी. थैंक यू.